की बात कर रहे थे। आपको जवाब दे रही हैं। बात करने पे आपका डिबेट नहीं, आपको जवाब दे रही हैं। आप बोल रही हैं ना, तो वक्त जाया हो रहा है। मानसिकता है, अपने आप टर्न तब पे से बोलिए। बोले जा रही हैं फिर लगातार नॉन स्टॉप। जवाब दे रही थी तो चूंकि मैंने आप तो धमका रही थी मैडम मुझे। आपके पेट में दर्द हो रहा था। अब तो अब आप धमका रही थी मुझे। अभी सरकार नहीं है तो धमकाती हैं आप लोग पत्रकारों को। सरकार आ जाएगी तो उठा के सबको बंद करवा दीजिए आप लोग, काम किया है ना। अब बोलिए, इसीलिए जनता आप लोगों को ला नहीं रही हो गया हो तो सुन लीजिए। आप लोगों की मेंटालिटी जनता को पता है। अब आपका डिबेट नहीं दे रही। अरे बहन जी सुन लीजिए, आप बोल रही हैं तब से पिछले 15 मिनट से बोल रही हैं, दूसरे का मुद्दे पर बोलिए। देखिए, मैं मुद्दे पर ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि मुसलमान महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले बाबा साहिब की बात कर रहे थे। बाबा साहिब ने कहीं पे भी धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोटा या किसी भी तरह के आरक्षण का प्रोविजन नहीं दिया। तो ये आपके लिए एक नई खबर है, आपको शायद पता नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सपा अगर मुस्लिम महिलाओं की आरक्षण की बात करता है राजनीति में, तो ये बता दे कि उनकी कितनी महिला मुस्लिम सांसद है। एक इकलौती इकरा हसन है। आपको किसने रोका था? मुसलमानों से आप वोट लेते हैं। कितनी महिलाओं को आपने आगे बढ़ाया, कितनी महिलाओं का आपने उत्थान किया, कितनी महिलाओं के आप बड़ा कार्य कर रही है। तो ये तो आपकी नीति और नियत में साफ झलकता है। आप अगर कोटा विद इन द कोटा की भी बात करें, ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुसलमान महिलाओं की बात करें, आपको किसने रोका था? इतने सालों से आप महिलाओं को टिकट देकर उनको आगे बढ़ाइए, विमेन लेड आप एम्पावरमेंट कीजिए। ये तो कोई बात ही नहीं होती। आपकी साफ यहां पर नियत झलकती है कि आप हर महिला के उत्थान का जो भी बिल आता है उसमें किसी ना किसी तरह से रोड़ा अटकाएंगे। आप पास तो हो गया, अब उसको क्योंकि आपकी मजबूरी, आप आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि भाई हम इस बिल में to further stall and further disturb and oppose the application of the women reservation bill. And the new pretext that they have come up with is this vacuous opposition, this baseless opposition to the delimitation exercise. When the Nari Shakti Adhiniyam was passed in 2023 and it was passed unanimously, all political parties agreed that the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, the women reservation bill, will be applicable after the census and a delimitation is undertaken. This is the mandate of the constitution that everybody voted for. Today, the opposition has taken a U-turn. They are now opposing the fast tracking of this bill in the 2029 elections and saying we want to oppose this because we don't want the delimitation exercise to take place. I come from the south of the country, the southern state of Karnataka, Speaker sir, just like you represent from Kerala. Speaker sir, over the last 3 days, we have seen a systematic misleading and propaganda by certain members of the opposition in the most irresponsible, anarchic fashion to mislead the people in the south of India. Let me make it very clear. If at all there was anything, even an ounce of injustice that the proposals that the government has brought to the parliament, even if there was an ounce of injustice to the south of India, I as a proud Kannadiga would have been the first to oppose such kind of a proposal. I have gone through the proposal that the government of India has brought, the Modi government has brought. I am saying this not as a member of the BJP, but I am saying this after thoroughly examining all the 3 proposals, that other than the practical proposal that the Modi government has brought for delimitation of seats in the country, the south of India and the smaller states of India that have controlled our population, we could not have got a better deal than this. This is the best deal that the Narendra Modi government has provided. Very briefly, I want to explain to you, through you to the House and the country, Speaker sir, the constitutional framework that governs the delimitation exercise. My learned friend Gaurav Gogoiji was in his speech mentioning that we are bringing the delimitation exercise through the back door. I want to very clearly make it clear to him that the delimitation exercise is not a backdoor exercise that the BJP is doing. This is a constitutional mandate of Article 81 and 82. We are only purely following what the Constitution asks us to do. There are 3 primary articles that govern the exercise that we are now conducting, Speaker sir.
Article 81, Article 82, and Article 330A of the Constitution, which provides for women reservation. Let us examine all the three articles briefly and summarily to understand what the articles essentially say. The first article, 81, determines the total number of seats. It also says that the total number of seats meant to the Lok Sabha, the House of People, must be divided across the country in such a manner. तो विपक्ष का एक बड़ा आरोप है कि उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश सरकार कर रही है डिलिमिटेशन और इस बिल के जरिए, और सीटें जो बढ़ाने की बात हो रही है उसके जरिए। तो इस पर एक जो चर्चा चल रही है उस पर आपको मैंने सुनाया कि कैसे अभी संसद में यह मामला पूरा गर्म है, इस पर डिबेट चल रही है, ये विशेष सत्र है। लेकिन एक बात यह है, आ रहा हूं फिर नायद आपने उंगली उठा ली है, एक सेकंड रुक जाइएगा। अभी बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई है नेहा जी बहुत देर से। नेहा, अखिलेश यादव की पार्टी को लगता है कि अगर आप महिला आरक्षण कर ही रही हैं, अनुरोध कर रही थी कि जी धर्मेंद्र जी का बाइक चला देते, मैं सुन लेती एक बार। रुक जाइए, मुझे पता है ना, आप कह रहे थे हाथ ना, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी आप कहेंगे कि पढ़ा लिखा आदमी जो होगा वो समझ पाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, सुनाइए जरा धर्मेंद्र यादव ने आज क्या कहा। और इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी फिर से सुनवाऊं, रुक जाइए, हो गया, फिर से सुनवाऊं, एक बार और सुनाइए। सांसद अपने ही सांसद के बयान को माफी मांगे, सबसे पहले माफ कर दीजिए उनको। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करी। अरे लड़के हैं, लड़कों की गलती हो जाती है, क्योंकि सच में लड़कों से गलती हो जाती आपकी है। परेशानी समझ मजबूरी है आपकी, माफी मांगे आपको। अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है, फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? छोड़ दीजिए। आपने कहा कि सेबर मुसलमानों की बात कर रहे थे, वो मैंने नहीं कहा मुसलमानों की बात कर रहे थे। आप एक काम कीजिए, मैंने आपको आपके सांसद का बयान सुनवा दिया। अब घर जाकर अब इस पूरे क्लिप को उठा के आप सुनिएगा कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि जब आधी आबादी के आरक्षण की बात हो ही रही है, 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो ही रही है, तो फिर उसमें अलग से मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करने की क्या जरूरत है। उसमें मुस्लिम महिलाएं हैं भाई, इस देश की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आधी आबादी में ही आती हैं, वो आधी आबादी से अलग नहीं आती हैं। नायद, आप भी आधी आबादी आती हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि धर्मेंद्र यादव को जाकर एक क्लास दीजिए, आप उनको बताइए कि सर क्या बोल दिया। डिबेट में डिफेंड करते नहीं बन रहा था, विद्यानाथ जी सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। आप भी तुक्के सवाल पूछ रहे हैं। अब लीजिए, आप बताइए तुक क्या है इसमें।